Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 5th series in which we will do 4th chapter of Raindrops, that is in Rhino Land. On page number 47 you have given some activity in which you have to name the animals of given national parks, the particular animal of the given national parks. First one is done for you. So first is Gir National Park, Gujarat. So Gir National Park, Gujarat is famous for lions. So Gir National Park, Gujarat is famous for lions. So you have to write lion. Next, Periyar National Park, Kerala. So Kerala is located here in the southwest part of India. So here this Periyar National Park is famous for elephants. So you have to write elephant. Next, Simplipal National Park, Odisha. So this is Odisha here. So this national park is famous for crocodiles. So you have to write crocodile. Next, Mount Abu Wildlife Sanctuary, Rajasthan. So Mount Abu Wildlife Sanctuary is famous for leopards. So you have to write leopards over here. Next, Jim Corbett National Park, Uttarakhand. Jim Corbett National Park, Uttarakhand is famous for tigers. So you have to write tiger. Next, Kaziranga National Park, Assam is famous for rhinoceros. Assam is located here. So they are famous for rhinoceros, one-horned rhinoceros. Therefore this chapter is based on rhinoceros or Kaziranga National Park. So let us start reading. So Kaziranga National Park in Assam has the largest population of greater one-horned rhino in the world. Every year it attracts hundreds of tourists from around the world. In the passage below, a mother rhino and a young visitor tell us about their experience in Kaziranga. So here in this part you have given the information that Kaziranga is a national park in Assam. It's located in Assam. असम में ये नेशनल पार्क है, हमने अभी मैप में देखा. और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसॉरस. वन हॉर्न राइनोस, जैसे ये वन हॉर्न बना हुआ है, वन हॉर्न होता है जिन राइनोसॉरस का, उन्हें कहते हैं वन हॉर्न राइनोसॉरस. सो एवरी ईयर, हर साल यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट आते हैं पूरे वर्ल्ड से. इन द पैसेज बिलो, तो इस पैसेज में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं. इन दोनों सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि मदर राइनो क्या कहती है, और दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे एक यंग विजिटर के बारे में, एक छोटा बच्चा जो विजिट करता है काजीरंगा नेशनल पार्क को और उसके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. So in section 1, it is the beginning of November and our home Kaziranga National Park has already seen the first trickle of tourists. So नवंबर की स्टार्टिंग में वहाँ पर जो टूरिस्ट आने शुरू होते हैं, और फर्स्ट ट्रिकल का मतलब होता है फ्लो, जैसे कहते हैं ना बाढ़ आ जाना, वैसे ही कहते हैं फ्लो ऑफ टूरिस्ट, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं नवंबर में. Next, let me introduce myself. I am a lady rhino, or as the visitors call me, the greater one-horned rhinoceros. So मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ. मैं हूँ एक लेडी राइनो, और मुझे लोग जो विजिटर्स हैं या जो टूरिस्ट हैं वो मुझे कहते हैं ग्रेटर वन-horned rhinoceros. Naturally, I get a lot of attention from the visitors as I wander about. जैसे कि पूरे पार्क में इधर उधर घूमती हूँ. वांडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना. तो जैसे कि मैं इधर उधर घूमती हूँ तो मुझे बहुत सारी अटेंशन मिलती है, मुझे लोग देखते हैं ध्यान से, तो मुझे बहुत अटेंशन मिलती है. Now that I have my little Raina, she accompanies me everywhere. Raina is my 1-year-old calf, the prettiest in the entire park. तो अब इसमें एक और कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है. कौन? राइना. दिस इज राइना, दिस इज राइनो, लेडी राइना, एंड दिस इज हर लिटिल 1-year calf which is known as राइना. सो यहाँ पर उसकी जो बेबी है, बेबी गर्ल राइना, उसे फॉलो करती है, हर जगह उसके साथ रहती है, हर जगह उसके पीछे पीछे जाती है, और वो पूरे पार्क में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रिटीएस्ट है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. द विजिटर्स लव हर ऑलमोस्ट एज मच एज आई लव हर. जो विजिटर्स हैं वो भी उसे बहुत पसंद करते हैं जितना कि मैं उसे पसंद करती हूँ. आई एन्जॉय वॉचिंग माई डॉटर लुक एट द जीप्स एंड द एलिफेंट्स विद ग्रुप्स ऑफ एक्साइटेड पीपल ऑन देम. मैं अपनी डॉटर को देखना बहुत पसंद करती हूँ जब वो जीप्स की तरफ देखती है, एलिफेंट्स की तरफ देखती है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ
तो मुझे अपनी डॉटर, अपनी लेडी जो बेबी लिटिल रायना है उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। She is delighted by them and that is delightful for me. She is delighted by them मतलब उसे उन लोगों को देखना अच्छा लगता है जो विजिटर्स होते हैं उस बेबी रायना को, और मुझे अपनी बेबी को देखना बहुत पसंद आता है, वो मुझे डिलाइट करता है। The greater one-horned rhinoceros is a mammal found mainly in northeast India. जो ये greater one-horned rhinoceros हैं ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही पाए जाते हैं। I hear the tour guide explained to the visitors he is right. We live in grasslands at the foothills of Himalayas. So मैंने अपने टूर गाइड से ये सुना है विजिटर्स को एक्सप्लेन करते हुए कि जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं वो हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे हैं। फुट हिल्स मतलब जहाँ पे हिमालयाज़ एंड होते हैं। हिमालयाज़ क्या होते हैं? दे आर माउंटेन्स, हिमालयाज़। सो फुट हिल्स, सो हिमालयाज़ जहाँ पर ख़त्म होते हैं उसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो नेशनल पार्क है या काजीरंगा नेशनल पार्क है, हमारा होम है, वो वहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। We live in okay, this is done, but until some years ago our home was not safe for us. लेकिन कुछ साल पहले जो हमारा होम था वो हमारे लिए सेफ नहीं था। Many of us were hunted for our unique horns. जो हम बहुत, ये राइनो ही कह रही है, जो लेडी राइनो है वही कह रही है कि जो हम राइनोसोरस थे ये हम सेफ नहीं थे क्योंकि हम हंट होते थे, हमें लोग हंटिंग करते थे, हमारी पोचिंग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे यूनिक होर्न्स की वजह से। जो हमारा होर्न होता है वो बहुत यूनिक होता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉस्टली उसकी वैल्यू होती है। ह्यूमन बींग्स आर सो ग्रीडी. Fortunately today there are strong laws and safety measures in place to protect us, and I can see the change that this has made. There are more of us now. तो वो कह रही है कि ह्यूमन बींग्स तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत लालची हैं ह्यूमन बींग्स। फॉर्चुनेटली जबकि फॉर्चुनेटली भगवान की दया से आज स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ पे पुलिस और कानून चलता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है। और मैं अब चेंज देख सकती हूँ कि हम अब बहुत बढ़ चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। Although we do not live together as a herd, I do see many other rhinoceros or small group of mothers and their calves. हालांकि हम लोग इकट्ठे नहीं रहते, एक ग्रुप में नहीं रहते। राइनो ये कह रही है कि हालांकि हम एक ग्रुप में नहीं रहते सारे इकट्ठे राइनोज, लेकिन मैं बहुत सारे अदर राइनोसॉरस को देखती हूँ, अदर मदर्स को देखती हूँ जो अपने बेबीज़ के साथ, अपने काव्स के साथ घूम रही होती हैं। वी समटाइम्स एक्सचेंज नोट्स एंड डिस्कस हाउ रिलीव्ड वी आर टू नॉट टू हैव वरी अबाउट हंटर्स एंड पोचर्स। सो हम कभी कभी अपनी एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ही ये राइनो कह रही है कि हम कभी कभी बात करते हैं, अपने एक्सचेंज नोट्स, हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि अब हमें कितनी शांति है, हम कितने रिलीव्ड हैं, अब हमें टेंशन नहीं है हंटर्स की और पोचर्स की। कोई हमें हंट कर देगा या हमें किल कर देगा, हमें कैच कर लेगा अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए। Over the years, I have wandered around Kaziranga, and I have seen that the park is varied and large. बहुत सालों तक मैं काजीरंगा में घूमी हूँ एंड मैंने बहुत सारे वेरिएशंस देखे हैं पार्क में। बहुत स्पेशली लव द टॉल एलिफेंट ग्रास एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मुझे स्पेशली जो एलिफेंट ग्रास होती है टॉल, वो बहुत पसंद है। इस पिक्चर में भी बनी हुई है एलिफेंट ग्रास। सो दिस इज़ एलिफेंट ग्रास, दिस इज़ एलिफेंट ग्रास, ओके। सो एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मानसून वहाँ पे रहता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो उस एरिया में काजीरंगा नेशनल पार्क में तो ये सारी वेरिएशंस हैं। However, रायना सीम्स टू एंजॉय वॉकिंग इन मार्शलैंड। लेकिन जो उसकी बेबी है 1 year old काफ है उसकी रायना, उसे मार्शलैंड में एंजॉय करना बहुत पसंद है। मार्शलैंड क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वेट हो। वेट मतलब वेट, यू नो वेट मीनिंग ऑफ वेट, वेट हो और सॉफ्ट हो, उस एरियाज को हम क्या कहते हैं? मार्शलैंड। समटाइम्स वी वॉक इन टू वन ऑफ द 4 मेजर रिवर्स इन अवर पार्क।
तो इस पार्क में 4 रिवर्स जो हैं, 4 मेन रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, लेकिन हमें उनमें से एक ऐसी रिवर है जिसमें हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। द ब्रह्मपुत्रा वाटर इज कूल एंड कम्फर्टेबल ऑन अ हॉट। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये बहुत बड़ी रिवर है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। सो ये रिवर जो है ये बहुत ही, इसका वाटर जो है वो बहुत कूल होता है एक बहुत ही गर्म हॉट डे पे। इट इज़ विंटर नाउ बट द आफ्टरनून्स आर स्टिल वेरी वार्म। अब आजकल तो विंटर्स चल रहे हैं, नवंबर स्टार्ट हो गया तो आजकल तो विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन में थोड़ी वार्म होती है तो हमें रिवर का वाटर अच्छा लगता है। तो इट इज़ विंटर नाउ बट द आफ्टरनून्स, आई थिंक रायना एंड आई विल हैव अ लिटिल फन इन द ब्रह्मपुत्रा टुडे। तो वो कह रही है कि मुझे लगता है, आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि मुझे और रायना को आज रिवर में थोड़ा फन कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। बट सिंस शी इज़ ओनली 1 year old, I will take her to safe spot away from the place where the larger animals gather. जबकि वो सिर्फ 1 साल की है तो मुझे उसे किसी ऐसी सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज एनिमल्स ना हों। At the moment I can spot a wild boar and Asiatic water buffalo, but otherwise we are surrounded by only by hornbill and Assam roofed turtle and a family of monitor lizards. तो ये कुछ एनिमल्स हैं डिस्क्राइब किए हुए जो उस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कौन कौन? वाइल्ड बोर, एशियाटिक वाटर बिफेलो, हॉर्नबिल, असम रूफ्ड टर्टल एंड मॉनिटर लिजार्ड्स। ये सारे एनिमल्स हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। द रिवर इज़ लवली टू वेड इन बट इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ एंडलेस रेन एंड द फ्लड्स ऑफ लास्ट ईयर। तो रायना वो कहती है कि हमें वेड का मतलब होता है जैसे किसी में कूदना, पानी की तरफ फ्लो करना। तो ये तो बहुत लवली है कि बहुत अच्छा है कि हम रिवर में एंजॉय करने जाएं, फन करने जाएं, लेकिन ये मुझे लास्ट ईयर की एंडलेस रेन की याद दिलाती है। एंडलेस रेन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में बारिश हुई है लास्ट ईयर, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आए हैं, बाढ़ आई है, और मोर देन 3/4 ऑफ पार्क वॉज फ्लडेड। और 3/4 से ज़्यादा का पार्क जो था वो फ्लड से भर चुका था। एंड वी हैड टू रश आउटसाइड सदर्न बॉर्डर, और हमें सदर्न बॉर्डर की तरफ रश करना पड़ा था, भागना पड़ा था। सेवरल ऑफ अस मूव टू हायर रीजन्स ऑफ मिकिर हिल्स। तो ये मिकिर हिल्स वहाँ पाई जाती हैं, हिल्स का नेम है मिकिर। सो हम में से बहुत सारे मिकिर हिल्स की तरफ भागे। My friend Jhumki told me yesterday that an Indian army has now constructed raised sections और छपोरीज for us. तो वो लेडी राइनो जो है वो कहती है कि मेरी फ्रेंड मुझे झुमकी मिली, उसने मुझे ये बताया कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अब हमारे लिए छपोरीज बना दी हैं। और आई एम सो ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुशी, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम सेफ़ हैं, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम छपोरीज के ऊपर जा सकते हैं और हम वहाँ से बच सकते हैं। वी कैन बी सेफ ऑन द टॉप ऑफ दिस छपोरीज इफ इट रेन्स टू मच दिस ईयर। छपोरीज आर लाइक शेड्स, ओके, टू क्लाइंब ऑन देम एंड टेक रेस्ट। रायना विल सून नीड टू लर्न अबाउट अदर एनिमल्स दैट लिव विद अस इन दिस पार्क। जो रायना है, जो बेबी रायना है, उसकी 1 year, वो भी जल्दी ही हमारे साथ रहना सीख लेगी। But she is so bright that she can already recognize the tiger, the leopard, the Bengal fox and the hollok gibbon. लेकिन वो इतनी ब्राइट है, इतनी ब्रिलियंट है कि उसने अभी से ही रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है कि कौन लेपर्ड है, कौन टाइगर है, कौन बंगाल फॉक्स है और कौन गिबन है, हुलक गिबन। डिड यू नो दैट हुलक गिबन इज़ ओनली एप लिविंग इन इंडिया? क्या तुम्हें पता है जो हुलक गिबन है वो सिर्फ एक ऐसा एप है जो पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। एप्स होते हैं मंकीज़ की ब्रीड में, जो होता है मंकी की ब्रीड में, जैसे ह्यूमन बींग्स हम बने हैं, वी आर ऑल्सो एप, ओके। सो उसी एप की बात कर रहे हैं। ये मंकीज़ जैसे गॉरिलाज होते हैं वैसे ही हुलक गिबन भी होता है, वो अलग तरह का होता है। तो सिर्फ ऐसा ही एक एप इंडिया में एग्जिस्ट करता है। Once I showed Raina the Ganges dolphin in one of the rivers. She gets puzzled when she sees all the birds. She says the Dalmatian pelican, the Indian vulture and तो जब मैंने एक बार रायना को गैंगेस डॉल्फिन रिवर में दिखाई, डॉल्फिन जो गैंगेस डॉल्फिन है वो उधर की रिवर में पाई जाती है। एंड येस, गैंगेस डॉल्फिन इज एक्वेटिक एनिमल ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एज वेल।
क्या है कि इसमें लेकिन वो कंफ्यूज होगी जब मैंने उसे डॉल्फिन के बारे में बताया, तो वो और बहुत सारे बर्ड्स के साथ कंफ्यूज होगी, डेल्मेशियन, पेलिकन, इंडियन वल्चर एंड द ब्लैक बेलिड tern all look alike. Can you imagine that those birds are so different from one another? और ये birds एक दूसरे से बहुत अलग अलग दिखते हैं. But she is learning, लेकिन वो learn करके धीरे धीरे सीख रही है. I like watching little rhina splash in water besides me. जब लिटिल राइना स्प्लैश करती है रिवर्स में मेरे साथ एंजॉय करती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई नो दैट शी विल मेक फ्रेंड्स हेयर, और मुझे पता है कि वो जल्दी ही अपने फ्रेंड्स बना लेगी यहाँ पे. शी विल ग्रो अप सराउंडेड बाय ओपन ग्रासलैंड्स एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग फ्लोरा एंड फोना. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फेमिलियर हो जाएगी, जो यहाँ बहुत ही अच्छे प्लांट्स और फ्लोरा और फोना मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल स्पीशीज़. सो इनके साथ वो फेमिलियर हो जाएगी. सो मैनी फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट डाउन एवरीवेयर दैट आई एम ग्लैड दैट शी हैज़ सेफ होम हियर. बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हम यहाँ सेफ हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में. आई होप दैट लाइक मैनी ऑफ अस शी विल लर्न टू एंजॉय द फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमन्स. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी लिटिल राना है, जो मेरी बेबी है, वो भी फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमन्स के साथ दोस्ती को जल्दी ही सीख जाएगी और उसे भी इंजॉय करेगी. नाउ दिस इज़ सेक्शन 1 हमने रीड कर लिया. इसमें एक लेडी राइना की जो कहना था उसका वो हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे एक जो यंग विजिटर है वो विजिट करता है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है. तो लेट अस स्टार्ट. Dear Samir, what a treat I had this winter. Mom and Dad organized a trip to Kaziranga National Park in Assam, and I saw the most amazing wildlife. Like ये किसी को एक पैराग्राफ और आई कैन से लेटर लिख रहा है, जिसमें अपने फ्रेंड को लिख रहा है, डियर समीर, कि व्हाट अ ट्रीट, कितना मज़ा आया मुझे इस विंटर. मॉम और डैड के साथ मैं नेशनल पार्क गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, और मैंने बहुत ही अमेजिंग वाइल्ड लाइफ देखी. डियर सांभर, एलिफेंट्स, वाटर्स, बफेलो, अरोक पाइथन एंड इवन द फेमस ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉरस. तो ये सारे एनिमल्स उसने डिस्क्राइब करे कि मैंने इनको देखा. इट वॉज एन एशियंट लुकिंग मेजेस्टिक क्रिएचर वेइंग ओवर 1600 kg एंड वॉज टॉलर देन डेथ. तो ये राइनोसॉरस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक एशियंट लुकिंग मेजेस्टिक क्रिएचर था. एशियंट मतलब बहुत पुराना क्रिएचर था, जो कि अराउंड 1600 kg का था और मेरे डैड से भी टॉलर था. And I was amazed by its thick brown folded skin and its single horn. और मैं उसकी स्किन को देखकर, जो कि ब्राउन थी, थिक थी, मोटी थी और फोल्डेड स्किन थी, उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, सरप्राइज़ हो गया. और उसके सिंगल हॉर्न को देखकर भी मैं सरप्राइज़ हो गया. I felt as if I had walked into the film set of some prehistoric era movie. मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी मूवी के सेट पे आ गया हूँ, जो कि किसी प्री हिस्टोरिक पे बेस्ड है, प्री हिस्टोरिक क्रिएचर पे बेस्ड है. मुझे ऐसा लगा मैं किसी मूवी के सेट पे आ गया. इनफैक्ट वी स्पॉटेड अ मदर राइनोसोरस विद हर काफ. तो अब उसी की बात कर रहे हैं कि हमने स्पॉट किया. स्पॉट का मतलब हमने देखा एक मदर राइनोसोरस को और उसके काफ को, उसके बेबी को. Soon the two entered the river nearby and began swimming with wild abandon. तो जैसे ही वो रिवर में एंटर किए और उन्होंने स्विम करना शुरू किया. विद वाइल्ड अबंडन का मतलब होता है बिना किसी के फियर के, विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, किसी और की परवाह किए बिना उन्होंने बहुत अच्छी स्विमिंग की. इट वॉज अ वार्म डे एंड आई लर्न दैट राइनोज स्पेंड मोस्ट ऑफ डे लाइंग इन पूल्स एंड रिवर्स. वो एक वार्म डे था, थोड़ा गर्म दिन था, लेकिन मैंने ये सीखा कि जो राइनोज होते हैं वो ज़्यादातर अपना समय पानी में, पॉन्ड्स में बिताते हैं, रिवर्स में बिताते हैं. द टूर गाइड इन्फॉर्म्ड अस दैट दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स एंड कैन रन वेरी फास्ट अप टू 55 किलोमीटर्स पर आवर. तो हमें टूर गाइड ने बताया कि बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और ये बहुत फास्ट रन करते हैं, अराउंड 55 किलोमीटर पर आवर. हमारी दैट इज़ फास्टर देन अवर जीप वॉज गोइंग. जो हमारी जीप थी उससे भी तेज़ वो रन करते हैं. The rhinos also kept making sounds and the guide told us that this was a bleat and that was a squeak or grunt or a roar. तो राइनोज बहुत तरह की साउंड्स निकालते हैं, अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, ब्लीट करते हैं, स्क्वीक करते हैं, ग्रंट करते हैं और रोर करते हैं. तो हमें जो गाइड था वो बता रहा था कि अब ये ग्लीट कर रहा है या ये ब्लीट कर रहा है या स्क्वीक कर रहा है. तो
लेकिन ही स्ट्रेस द राइनोज आर वेरी वोकल एंड मेक एटलीस्ट 10 डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट इमोशंस। उन्होंने कहा, टूर गाइड ने बताया कि जो राइनोसोरस हैं वो तकरीबन 10 तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं, हर इमोशन के लिए एक अलग आवाज़ होती है उनकी। बट आई हैव टू से दैट ऑल साउंड्स दे मेड सीम्ड मच द सेम टू मी, लेकिन मुझे सारी आवाज़ें सेम सी लगी, एक जैसी लगी। आई होप यू विल एबल टू सी दिस फैसिनेटिंग क्रिएचर समटाइम्स। मुझे उम्मीद है कि तुम भी किसी दिन ये अमेजिंग क्रिएचर अपनी आंखों से देखोगे। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस इज लिस्टेड एज अ वल्नरेबल स्पीशीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हंटिंग एंड पोचिंग। लेकिन जो ये एनिमल है, ये जो वल्नरेबल स्पीशीज में दर्ज है, इसे वल्नरेबल स्पीशीज कहा गया है, जो कि बहुत ही मतलब एंडेंजर्ड, जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल, कि जो कि बहुत ही कम रह गए हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। Fortunately, national parks such as Kaziranga ensure that the endangered and vulnerable animals have a safe natural habitat. Fortunately, जो नेशनल पार्क्स हैं जैसे काजीरंगा, या वो इंश्योर करते हैं कि जो एंडेंजर्ड और वल्नरेबल एनिमल्स हैं उन्हें हम नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाएं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो उनकी पॉपुलेशन को कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है। और वल्नरेबल और एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो एनिमल्स रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मतलब जो ख़त्म होने की तादाद पे हैं, जिनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है। ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर पार्क स्प्रेड्स ओवर मोर देन 400 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड नेचुरली वी कुड नॉट सी द एंटायर प्लेस। मॉम एक्सप्लेन दैट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ये पार्क जो है वो तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हम एक बार में ये पूरा पार्क नहीं देख सकते, वो बहुत मुश्किल है देखना, क्योंकि इतना ज़्यादा एरिया है। और मेरी मॉम ने हमें ये एक्सप्लेन किया कि वो पूरी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को जो है एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसे दर्ज किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं कि कुछ वर्ल्ड्स में ऐसी साइट होती हैं जो कि दर्ज होती हैं, मतलब उन्हें मार्क किया जाता है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आई लेटर रीड दैट इन 1904 मैरी कर्जन, द वाइफ ऑफ जॉर्ज कर्जन, who was Viceroy of India at the time, wanted to see the rhinoceros that this place was famous for, and she couldn't spot a single one. मैंने बहुत बाद में पढ़ा कि 1904 में जो मैरी कर्जन थी, जो जॉर्ज कर्जन की वाइफ थी, और जॉर्ज कर्जन कौन थे, वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पे, वो चाहती थी कि वो राइनोसॉर्स को देखे, जो कि ये प्लेस फेमस थी जिनके लिए, लेकिन उसने एक भी यहाँ पर वो देख नहीं पाई, वो इस पार्क में एक भी राइनोसॉरस नहीं देख पाई। तो उसने परसुएड किया अपने हस्बैंड को मनाया किसी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो पॉपुलेशन ऑफ राइनोसॉरस है वो इंक्रीज हो सके। थैंक्स टू ऑल दीज एफर्ट्स द पार्क नाउ हैज़ द वर्ल्ड्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ 100 राइनोसॉरस। थैंक्स टू मैरी कर्जन, उनसे थैंक्स करता हूँ मैं, जिसकी वजह से आज इस पार्क में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 100 राइनोसॉरस की। वी स्पॉटेड आवर फर्स्ट वंस विद इन एन आवर्स ड्राइव। हमने जो राइनोसॉरस थे वो हमारी 1 आवर के ड्राइव में ही हमने फाइंड आउट कर लिए थे। हमें अभी 1 आवर ही हुआ था जीप में ड्राइव करते हुए, और हमें जो है राइनोसॉरस वो दिख गया था। It seems strange to be back now in this concrete jungle after taking in all the sights, sounds of wildlife in the park. I wanted to go there again soon, maybe to a different part of the park, and maybe you can join us next time. Yours affectionately, आदिल। तो वो ये कह के एंड करता है अपने लेटर को कि अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं उस पार्क से आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँ और उस फॉरेस्ट के किसी और पार्ट में जाऊं जहां मैं नहीं गया हूं इस बार, और मैं ये भी होप करता हूं कि अगली बार आप भी मुझे ज्वाइन करेंगे। योर्स अफेक्शनेटली आदिल। आदिल जो बच्चा है वो ये लेटर लिख रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर चला ये, लेकिन कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ मैसेज मी पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।